Hey students, today we will discuss our class 11 chapter 7 of the snapshot book, and the name of the chapter is Birth, written by A.J. Cronin. He is A.J. Cronin's picture and he is the writer of this chapter, Birth. Now, I, I will tell you some major characters of this chapter. First character of this story is Dr. Andrew Mention. So, let me know some characteristics of Dr. Andrew. Newly qualified, takes a job as assistant to Dr. Page in a small mining town. On arrival, he finds to his surprise that Dr. Page is partly paralyzed and will never walk again. This means Dr. Andrew Mention will have to do most of the clinic's work in this mining town at a mure's pay. Now, we move to the second character. Second character is the midwife, an experienced nurse to help in the birth of child. The midwife and Andrew are contrasting personalities. The midwife is a foil to Andrew. She feels hopeless, resigned, helpless, fearful, and untrained. On the other hand, Andrew proves to be more optimistic, diligent, efficient, self sufficient, spontaneous, and well trained. Now, we will read the third character, Joe Morgan, a well built person in 40s, lives in a small Welsh town of Ballinley, works as a driller at the mines. He has been married for 20 years but have not got any child so far. Now we will see the fourth character, Mrs. Morgan, wife of Joe Morgan, is expecting her first child. Both her husband and her mother are feeling very nervous because the delivery of the child is going to be before time. Next character is Kristen. Kristen is a school teacher. Andrew falls in love and contemplates marrying her. Next character is Morgan's mother, a tall, grey-haired woman of nearly 70. Birth is an excerpt from The Citadel written by A.J. Cronin. मीन्स बर्थ जो हमारा चैप्टर है वो A.J. क्रॉनिन के द्वारा एक जो नॉवल लिखा गया था द सिटेडल, जो कि 1937 में लिखा गया था, उसमें से एक छोटा सा अंश जो है वो यहाँ पर स्टोरी के थ्रू डिस्क्राइब किया गया है. नेक्स्ट, now we will start the summary. Andrew Mention was a young doctor. He had newly passed out of a medical school. डॉक्टर एंड्रयू मेंशन जो है वो एक यंग डॉक्टर हैं और अभी अभी उन्होंने मेडिकल की जो स्टडी है अपनी वो कंप्लीट की है. He had joined as an assistant to डॉक्टर एडवर्ड पेज, और वह डॉक्टर एडवर्ड पेज के सहायक के रूप में काम करने लगे थे. Their surgery was in small Welsh town of Ballinley, और वह डॉक्टर यानी कि डॉक्टर पेज के असिस्टेंट के रूप में काम करने लगे थे और उनका जो हॉस्पिटल था वो कहाँ पर कि
वेल्स नामक जगह के वैलनली नामक एक छोटे से शहर में था। इट इज़ ए माइनिंग टाउन। यह क्या था कि एक ऐसा नगर था जहाँ पर जो ज़्यादातर लोग थे वो क्या, खानों में काम करते थे। The part of the town where the doctor's surgery was situated was known as Brindgore, कि नगर का वो हिस्सा जहाँ डॉक्टर का हॉस्पिटल या क्लिनिक हम कह सकते हैं, हॉस्पिटल नहीं हम उसको कहेंगे, क्लिनिक हम उसको बोल सकते हैं। तो क्लिनिक जहाँ पे उनका था, तो वो कहाँ पे था, उसे उस जगह को किस नाम से जाना जाता था, जहाँ पे एडवर्ड पेज की सर्जरी यानी कि क्लिनिक था, तो उस जगह को किस नाम से जाना जाता है, तो उस जगह को ब्रिनगौर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, एंड्रयू लिव्ड क्लोज टू द सर्जरी, और एंड्रयू जो है वो उसी क्लिनिक के पास में ही रहता था। नेक्स्ट, जो मॉर्गन वॉज ए रेजिडेंट ऑफ दिस टाउन। जो मॉर्गन जो कि इसी नगर के रहने वाले थे, इसी कस्बे के रहने वाले थे। ही वॉज ए बिल्ट पर्सन एंड वर्कड एज अ ड्रिलर एट द माइंस। वो क्या कि काफ़ी हट्टे खट्टे शरीर वाले व्यक्ति थे, और खानों में ये जो माइंस वाले जो थे, तो माइंस में काम करने वाले एक जो है, माइंस में काम करने वाले एक ड्रिलर थे, यानी कि एक ड्रिलर का काम वो खानों में करते थे। ही लिव्ड विद हिज वाइफ, वो अपनी पत्नी के साथ रहते थे। दे हैड बीन मैरिड फॉर अबाउट 20 ईयर्स, और उनकी शादी हुए लगभग 20 साल हो चुके थे। नेक्स्ट, दे हैड बट सो फार दे डिड नॉट हैव एनी चाइल्ड, लेकिन अभी तक उनका कोई बच्चा नहीं हुआ था। नाउ मिसेस मॉर्गन वॉज एक्सपेक्टिंग हर फर्स्ट चाइल्ड, लेकिन अब मिसेस मॉर्गन का पहला बच्चा होने वाला था। इट वॉज अबाउट मिडनाइट, लगभग आधी रात हो गई थी। एंड्रयू लव्ड ए गर्ल नेम्ड क्रिस्टिन, और एंड्रयू एक लड़की को पसंद करता था जिसका नाम था क्रिस्टिन। After spending a disappointing evening with her, he came back home. क्रिस्टिन के साथ एक निराशापूर्ण शाम बिताने के बाद जो डॉक्टर एंड्रयू है वो वापस घर आ गए। नेक्स्ट, he found Morgan waiting for him restlessly. उसने देखा कि मॉर्गन जो है डॉक्टर एंड्रयू की बेचैनी से जो है वेट कर रहा था। नेक्स्ट, एन एक्सप्रेशन ऑफ रिलीफ केम ऑन मॉर्गन्स फेस एट द साइट ऑफ डॉक्टर, और डॉक्टर को देखकर an expression of relief came on Morgan's face at sight of the doctor. He told the doctor that he had been waiting for him for an hour. He said that his wife needed his presence because the child was expected to be born before time. डॉक्टर को देखकर मॉर्गन के चेहरे पर एक जो है राहत का भाव उनके चेहरे पर नजर आता था, और उसने डॉक्टर से कहा कि वह डॉक्टर एंड्रयू की 1 घंटे से वेट कर रहा था, और साथ में मॉर्गन ने कहा कि उसकी पत्नी को उसकी उपस्थिति की ज़रूरत थी, क्योंकि बच्चे का जन्म समय से पहले होने की आशा थी। ये सारी बातें जो है मॉर्गन बताते हैं। ये मॉर्गन हैं जो कि सारी बातें बता रहे हैं किसको, डॉक्टर एंड्रयू को। तो ये सारी बातें डॉक्टर एंड्रयू को बताते हैं कि किस तरह से उनकी वाइफ को जो है, किसकी वाइफ को, मॉर्गन की वाइफ को ज़रूरत है, किसकी, डॉक्टर एंड्रयू की। एंड्रयू वेंट इनटू द हाउस फॉर हिज बैग। एंड्रयू जो है वो अपना बैग लेने के लिए अंदर गया।
Together they set out for Morgan's house, which was at Bellany Terrace. और उसके बाद दोनों इकट्ठे, दोनों कौन कौन, यहाँ पे दोनों कौन? यस, फर्स्ट वन इज डॉक्टर एंड्रयू एंड सेकेंड वन इज मॉर्गन. ठीक है, तो दोनों के दोनों ही किस तरफ चलते हैं? यस, मॉर्गन के घर की तरफ चलते हैं, जो कि कहाँ पे था? 12 Bellany Terrace पे जो उनका घर था. ठीक है, ये एड्रेस है किसका? मॉर्गन का एड्रेस है ये. नेक्स्ट, 12 Bellany Terrace पर था. नेक्स्ट, एंड्रयू वॉज फीलिंग वेरी डल एंड टायर्ड. एंड्रयू जो थे वो बहुत ज़्यादा नीरस और थके हुए महसूस कर रहे थे. He had no idea that this night call would prove unusual. और डॉक्टर एंड्रयू को इस बात का कोई विचार नहीं था कि उस रात का बुलावा उसके लिए एकदम अनयूजुअल क्या होता है? अनकॉमन साबित हो सकता है. He had even less idea that it would influence his whole future in Bellany. डॉक्टर एंड्रयू को इस बात का भी कोई अंदाजा नहीं था कि इससे बेलनले में उसका पूरा का पूरा भविष्य जो है वो इन्फ्लुएंस होगा, प्रभावित होगा. When they reached the door of number 12, Morgan stopped outside the door. He said that he would not go in. His voice showed signs of worry when he said to the doctor, "I know you will do well for us." इसके बाद डॉक्टर एंड्रयू और मॉर्गन दोनों जो है वो उस एड्रेस की तरफ निकल चलते हैं जो कि 12 Bellany Terrace था. नेक्स्ट है कि जब वे 12 नंबर पर पहुंच जाते हैं, मकान के दरवाजे पर पहुंचे, तो मॉर्गन जो थे वो दरवाजे के बाहर ही रुक गए और उन्होंने कहा कि वे अंदर नहीं जाना चाहेंगे. मॉर्गन की आवाज़ में एक चिंता जो थी वो दिखाई दे रही थी. जब उसने डॉक्टर एंड्रयू से कहा कि मुझे पता है कि आप मेरे लिए सब कुछ ठीक ही करेंगे और आप ही अंदर जाके जो है वो केस को संभालिए, मैं यहीं पे बाहर इंतज़ार करूँगा. Inside a narrow stair lead up to small bedroom. It was clean but poorly furnished. और अंदर एक तंग सी यानी कि एक बहुत ही कम चौड़ी सीढ़ी ऊपर की तरफ एक छोटे से बेडरूम को जाती है. वह साफ था. इट वॉज क्लीन बट पुअरली फर्निश्ड. जो कमरा था वो साफ था लेकिन बहुत ही ज़्यादा सजा हुआ नहीं था. It was lit only by an oil lamp. और इसमें केवल एक तेल वाला लैंप जला हुआ था. मिसेस मॉर्गन्स मदर वॉज सिटिंग बिसाइड द पेशेंट. अब यहाँ पे पेशेंट कौन है? कमेंट बॉक्स में आप मेरे को कमेंट करके बताएंगे कि यहाँ पे आखिर जो पेशेंट है वो कौन है. नेक्स्ट, मिसेस मॉर्गन की जो मदर हैं वो बिल्कुल उस पेशेंट के समीप ही उसके पास ही बैठी थी. शी वॉज टॉल. अब यहाँ पे मिसेस मॉर्गन की मदर की बात हो रही है कि जो मिसेस मॉर्गन की जो मदर हैं वो लंबी थी, ग्रे हेयर्ड यानी कि उनके सफ़ेद बाल थे, वुमेन ऑफ नियरली 70 और लगभग उनकी उम्र कितनी थी? लगभग 70 साल थी. एन एल्डरली मिडवाइफ वॉज ऑल्सो देयर. एक तो कौन? मिसेस मॉर्गन की मदर और दूसरी एक और लेडी जो वहाँ पर थी वो कौन थी? कि मिडवाइफ. मिडवाइफ का यहाँ पे जो मीनिंग होगा वो क्या है? जो दाई होती है, जो नर्स का जो काम करती है उसको हम बोलते हैं. कि एक जो बुजुर्ग सी दाई भी वहाँ पे थी. बोथ ऑफ देम वॉच्ड एंड्रयूज एक्सप्रेशन एज ही मूव्ड अबाउट द रूम. और दोनों औरतें, अब दोनों औरतें कौन कौन? एक तो मिसेस मॉर्गन की मदर और सेकंड वन इज कौन? जो मिडवाइफ यानी कि दाई जो वहाँ पे थी, वो दोनों ही एंड्रयू के चेहरे के एक्सप्रेशन को देख रही थी जब वह कमरे में इधर उधर चक्कर काट रहा था. लेट मी मेक
यू ए कप ऑफ टी डॉक्टर, सैड मिसेस मॉर्गन आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स। और मिसेस मॉर्गन ने, यानी कि मिसेस मॉर्गन की जो मदर थी, उन्होंने 1 मिनट के बाद ही क्या कहा, डॉक्टर से कहा कि मैं आपके लिए चाय बना देती हूँ। Andrew smiled a little. He saw that the old woman was wise in experience. एंड्रयू थोड़ा सा मुस्कुरा दिया। उसने देखा कि बूढ़ी औरत जो है वो अनुभव से बहुत ही ज़्यादा बुद्धिमान थी, अनुभव होने की वजह से बहुत ज़्यादा बुद्धिमान थी। She knew there was a period. She knew there was a period of waiting. And means क्या कि वह जानती थी कि वहाँ कुछ समय अभी जो डॉक्टर एंड्रयू है उनको वेट करनी पड़ेगी। एंड शी वॉज अफ्रेड दैट द डॉक्टर वुड लीव द केस सेइंग ही वुड रिटर्न लेटर। और अब जो मिसेस मॉर्गन की मदर थी उनको डर था इस चीज़ का कि डॉक्टर उन्हें कहीं ये कहकर वहाँ से चला ना जाए कि वो थोड़े समय के बाद वापस आ जाएगा। नेक्स्ट, डोंट वरी मदर, सेड एंड्रयू, आई विल नॉट रन अवे। और डॉक्टर एंड्रयू ने कहा कि माँ चिंता मत करो, मैं यहाँ से कहीं नहीं भागूंगा। डाउन इन द किचन ही ड्रैंक द टी विच शी गेव हिम। नेक्स्ट, दो ही वॉज टायर्ड ही न्यू ही कुड नॉट हैव इनफ 1 hour स्लिप इफ ही वेंट होम। डॉक्टर एंड्रयू जो है वो बड़े ध्यान से पेशेंट को देखते हैं और उसके बाद जो मिसेस मॉर्गन की जो मदर थी उनसे कहते हैं कि चिंता मत करो, मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा। उसके बाद वो दोनों के दोनों जो है वो नीचे किचन में चले जाते हैं। कौन दोनों यहाँ पे बात हो रही है, तो एक तो वो बूढ़ी औरत यानी कि कौन थी, मिसेस मॉर्गन की मदर थी। वो दोनों नीचे जाते हैं, रसोई घर में जाते हैं और मिसेस मॉर्गन की मदर ने उसको चाय पीने के लिए उसे बना कर दी। हालांकि जो मिस्टर मॉर्गन थे वो बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे और वो इस बात को जानते थे, किस बात को जानते थे कि यदि वो यहाँ से घर जाते हैं तो उनको 1 घंटे से भी कम समय में वापस आना पड़ेगा और जब वो जाएंगे वहाँ से वापस आएंगे तब तक का टाइम जो है वो वेस्ट होगा, इसलिए उन्होंने वहीं पर रुकने का डिसाइड किया। नेक्स्ट, he knew too that the case there would demand all his attention, so he decided to remain until everything was over. और साथ में डॉक्टर एंड्रयू जो थे वो ये भी जानते थे कि पेशेंट को उनके पूरे ध्यान की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही वो जो है यहाँ से जाएंगे, यानी कि जब तक पूरा काम ख़त्म नहीं हो जाता तब तक वो वहीं पर रहेंगे। An hour later, he went upstairs again. और लगभग 1 घंटे के बाद वह वापस से डॉक्टर एंड्रयू जो है वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हैं। He noted the progress made, came down once more. और उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू ने देखा कि स्थिति में अभी कितनी प्रोग्रेस है और एक बार वो फिर से नीचे आ जाते हैं। कहाँ पे? किचन में। He sat down by the kitchen fire. और उसके बाद there was no sound except the beat of Morgan's footsteps as he paced in the street outside. The old woman sat opposite him. She remained quite motionless with her eyes never leaving his face. Andrew was lost in his thoughts about Kristen. Next, उसके बाद जो डॉक्टर एंड्रयू है वो वापस रसोई घर वाली आग के नज़दीक जो है वो बैठ जाते हैं। उसे मॉर्गन के पैरों की आवाज़ के अतिरिक्त कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी जो बाहर गली में चक्कर लगा रहा था। बूढ़ी औरत एंड्रयू के सामने की तरफ बैठी थी, पिक्चर में दिख रहा होगा आपको, और वह लगभग बिना हिले बैठी रही। उसकी आंखें जो थी वो बिल्कुल एंड्रयू के ऊपर थी और एंड्रयू के चेहरे से बिल्कुल भी नहीं हट रही थी। एंड्रयू क्रिस्टन के बारे में अपने विचारों में खोया हुआ था।
ये पिक्चर मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिखाए हैं ताकि अच्छे से आप चीज़ों को जो है वो कोरिलेट कर पाएँ पिक्चर के थ्रू। नेक्स्ट, at last the nurse voice was heard calling from the top landing। और आखिर में सीढ़ी के सबसे ऊपर वाले पायदान से नर्स के द्वारा डॉक्टर एंड्रू को बुलाने की आवाज़ सुनाई दी। एंड्रू लुक्ड एट द क्लॉक। एंड्रू जो है वो घड़ी की तरफ एंड्रू ने देखा। इट नाउ शोव्ड 3:30। अब उस समय पे घड़ी में जो टाइम हुआ था वो 3:30 हुआ था। 3:30 का मीनिंग क्या होगा हिंदी में वो आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट देखिएगा, ही रोज एंड वेंट अप टू द बेडरूम। वो सीधे उठे और ऊपर बेडरूम की तरफ गए। ही saw that he could now begin his work। और उसके बाद उन्होंने देखा कि अब वो अपना काम शुरू कर सकते हैं। An hour passed। लगभग 1 घंटा बीत गया। It was a long hard struggle। और यह एक लंबा कठिन संघर्ष था। Then as the first rays of dawn appeared, the child was born lifeless। और लगभग 1 घंटा स्ट्रगल के बाद जो बच्चा है वो पैदा होता है, लेकिन जो बच्चा पैदा हुआ वो बिल्कुल कैसा था? यस, वो बिल्कुल जब सुबह की किरणें जो है पहली किरणें दिखाई दी तो बच्चा पैदा तो हुआ, लेकिन बच्चा कैसा? बेजान एकदम से। हम उसको मरा हुआ नहीं कहेंगे, क्या कि एकदम बेजान बच्चा जो है वो पैदा हुआ। नेक्स्ट, As Andrew looked at the lifeless form, a shiver of horror went through his body। और जब एंड्रयू ने उस बेजान आकृति को यानी कि उस बच्चे को देखा तो उसके शरीर में एकदम से डर की एक कपकपी जो है वो दौड़ गई। He had never imagined such thing would happen after all that he had promised। कि उसने कभी भी इस चीज़ की कल्पना नहीं की थी कि उसने वादा करने के बावजूद ऐसी चीज़ हो जाएगी। यानी कि उसने प्रॉमिस किया था कि वो सब कुछ सही करेगा, लेकिन उससे ऐसा हो जाएगा उसने कभी नहीं सोचा था। His face hated with his own exertion chided suddenly। और उसका चेहरा जो उसके द्वारा काफ़ी देर स्ट्रगल करने के कारण गर्म हो गया था, अचानक से जैसे ही वो देखता है कि बच्चा जो है वो मरा हुआ पैदा हुआ है तो अचानक बर्फ की तरह से एकदम ठंडा पड़ जाता है। He could not decide whether to resticate the child first or attend to the mother। वह फैसला नहीं कर पाया कि वह पहले बच्चे को जो है दोबारा से मतलब उसको रेस्टिकेट होता है पुनर्जीवित करना, यानी कि बच्चे को पुनर्जीवित करे, अथवा क्या कि माँ की तरफ ध्यान दे। क्यों? क्योंकि हु वॉज हर सेल्फ इन ए सीरियस स्टेट, जो कि खुद एक गंभीर हालत में थी। मीन्स यहाँ पर डॉक्टर एंड्रयू के सामने डायलेमा होती है। डायलेमा क्या होती है? द्विधा। तो द्विधा डॉक्टर एंड्रयू के सामने क्या होती है कि वो पहले माँ को बचाए या फिर बच्चे को। नेक्स्ट, इंस्टिंक्टिवली ही गेव द चाइल्ड टू द नर्स एंड turned his attention to Susan Morgan, who now lay collapsed, almost pulseless। He gave her injection, and after a few minutes of feverish effort, Susan's heart gained strength। Now he could safely leave her। उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू ने बड़े ही सहज भाव से जो है वो बच्चे को पकड़ा दिया, किसे? नर्स को, और अपना पूरा ध्यान सुसैन मॉर्गन की तरफ लगा दिया, जो अब तक लगभग बेहोशी की हालत में थी और जिसकी नब्ज लगभग चलनी बंद हो गई थी। नेक्स्ट, उसने उसके बाद उसे एक जो है इंजेक्शन लगाया तथा कुछ मिनटों के लिए जोरदार यत्न करने के बाद, प्रयास करने के बाद सुसैन के दिल के हालत में थोड़ी सी सुधार आ गई।
अब वह उसे जो है सुरक्षा पूर्वक यानी कि बड़े ही सेफ तरीके से सुशेन मॉर्गन को थोड़े समय के लिए छोड़ सकता था, यानी कि अब वो कंसंट्रेट कर सकता था किसकी तरफ, बच्चे की तरफ। नेक्स्ट देखिएगा। स्विगिंग राउंड टू द नर्स ही आस्क्ड वेयर्स द चाइल्ड। और जल्दी से नर्स की तरफ देखते हुए डॉक्टर एंड्रयू ने पूछा कि बच्चा कहाँ पर है। द मिडवाइफ मेड ए फ्राइटेंड गेस्चर, शी हैड प्लेस्ड द चाइल्ड अंडर द बेड। इन ए फ्लैश एंड्रयू knelt down, fishing among the pseudo newspaper below the bed. He pulled out the child. It was a boy, perfectly formed. उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू ने जैसे ही नर्स से पूछा कि बच्चा आखिर कहाँ पे है, तो जो नर्स है यानी कि जो दाई थी उसने पूरी तरह से डरे हुए इशारा कर दिया किसकी तरफ, बच्चे की तरफ, कि बच्चा जो है वो कहाँ पर है। उसने बताया कि उसने बच्चा जो है वो चारपाई के नीचे रख दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसे लगा था कि शायद जो बच्चा है वो पूरी तरह से मर चुका है। और बिल्कुल बिजली की तेज गति से डॉक्टर एंड्रयू घुटनों के बल होकर जो है वो नीचे को झुका और चारपाई के नीचे की तरफ गंदे हुए अखबारों में से टटोलते हुए उसने बच्चे को खींचकर जल्दी से बाहर निकाला। और ये जो बच्चा था ये एक लड़का था जिसके पूरी तरह से पूरा जो बच्चा था वो पूरी तरह से फॉर्म हो चुका था, यानी कि उसके सभी जो अंग थे वो बन चुके थे। The body was yet warm and it was white and soft as tallow. और जो शरीर था बच्चे का वो अभी भी गर्म था, वो सफ़ेद था और चर्बी की भांति एकदम सॉफ्ट था, मुलायम था। टेलो होता है चर्बी। द स्किन वॉज स्मूथ एंड टेंडर, और चमड़ी की जो बिल्कुल चिकनी और बिल्कुल कोमल थी। द हेड लॉल्ड ऑन द थिन नेक, और सिर जो है वो पतली सी गर्दन के ऊपर लटका हुआ था, क्योंकि अभी वो बिल्कुल बेजान था इस वजह से। क्योंकि जब हमारे बॉडी जो पार्ट्स जो हैं वो जब पूरी तरह से, अगर हम फेंट नहीं होते, बेहोशी की अवस्था में नहीं होते हैं, तो पूरी तरह से अकड़े हुए होते हैं, यानी कि अपने बल पर होते हैं। नेक्स्ट, द लिम्स सीम बोनलेस, और उसके जितनी भी जो अंग थे बॉडी के वो बिल्कुल ऐसे लग रहे थे मानो कि उनके अंदर हड्डियां ही ना हो। When Andrew looked at the child, he at once knew that it was a case of एक्सेसिया। एक्सेसिया मीन्स क्या होता है यहाँ पे, जो अनकॉन्शियस ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन, यानी कि जब हमारा सांस घुटने लगता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं। इंस्टेंटली ही वॉज ऑन हिज फिट, और जैसे ही एंड्रयू ने बच्चे को देखा तो वह तुरंत जान गया कि उसमें जो है सांस रुकने वाली जो प्रॉब्लम है वो है, यानी कि उसे घुटन हो रही है, सांस वो ढंग से नहीं ले पा रहा है। नेक्स्ट, तुरंत ही वह अपने पैरों पर डॉक्टर एंड्रयू जो है वो खड़े हो जाते हैं। गेट मी हॉट वाटर एंड कोल्ड वाटर, ही सेड टू द नर्स, एंड बेसिन्स टू, क्विक क्विक। और उसके बाद डॉक्टर एंड्रयू ने कहा कि मुझे गर्म पानी और ठंडा पानी ला कर दो। उसने नर्स से कहा और कहा जल्दी से दो जो है बेसिन्स होते हैं कोई भी बर्तन, जल्दी से एकदम मुझे ला कर दो, क्विक क्विक, एकदम जल्दी। He took a blanket and laid the child upon it. उसने एक कंबल लिया और बच्चे को इसके ऊपर डाल दिया। Then he began the special method of respiration. और उसके बाद उन्होंने respiration method, जो कि आपने साइंस में पढ़ा होगा, अपना respiration method जो है वो स्टार्ट कर दिया। The basins arrived. इतनी देर में जो बर्तन थे वो आ चुके थे। Andrew put cold water into one basin, into the other he mixed water as hot as his hand could bear. Then, like a crazy juggler, he hurried the child between the two basins. Now he plunged it into the icy water, now into the hot one. तब तक जो बेसिन्स थे, जो बर्तन थे पानी के, वो भी आ चुके थे, जैसे आपको पिक्चर में दिख रहे होंगे इस तरह के बेसिन्स। तो वो बर्तन भी आ चुके थे पानी के, और
अब एंड्रयू ने जो है क्या किया कि एक बेसिन के अंदर में ठंडा पानी डाल दिया और दूसरे में थोड़ा सा इतना गर्म पानी जो कि उनके डॉक्टर एंड्रयू के हाथों को सुहा सके। जैसे कि आप जो इधर वाला जो आपको दिख रहा है, ये वाला जो बेसिन है आप देख रहे होंगे, इसके अंदर थोड़ा सा आपको जो है भाप सा, थोड़ा गर्म पानी से जैसे भाप निकलती है तो इस तरह का आपको दिखाई दे रहा होगा। तो दोनों बेसिन्स में, एक में उन्होंने जो है ठंडा पानी डाला और दूसरे में उन्होंने जो है थोड़ा सा हल्का गर्म पानी उन्होंने डाला और फिर एकदम एक जगलर की तरह से जो है, जगलर होता है जो मदारी होता है उसको कहते हैं, मदारी तो समझते होंगे, जो खेल वगैरह दिखाता है, जो कि जल्दी जल्दी से ट्रिक्स करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, जो कि स्पेशली बंदर का खेल या इस तरह का कोई भी जो खेल होता है उस समय पे आपने देखा होगा। तो उसने जल्दी से बच्चे को दोनों के दोनों, कभी एक बार वो कभी ठंडे पानी वाले में उसमें बेसिन में डालता तो कभी गर्म पानी वाले बेसिन में डालता। एक बार वह इसे बर्फ के जैसे ठंडे पानी में डाल देता और फिर दूसरी बार उसे थोड़ा सा हल्का जो गर्म पानी था उसमें डालता। नेक्स्ट, 15 मिनट्स पास्ड। लगभग इसी तरह से करते हुए डॉक्टर एंड्रयू को 15 मिनट बीत गए। स्वेट वॉज नाउ रनिंग इन टू एंड्रयूज आइज। ये स्वेट है, स्वीट नहीं है। स्वीट जो है वो डबल ई टी होता है, स्वेट मीन्स पसीना। पसीना अब एंड्रयू की आंखों पर आ रहा था। हिज ब्रेथ वॉज कमिंग पैटिंगली, और वह हाफते हुए सांस ले पा रहा था क्योंकि इतना ज़्यादा एफर्ट करने के बाद। बट नो ब्रेथ केम फ्रॉम द बॉडी ऑफ द चाइल्ड। जो एंड्रयू हैं वो तो सांस लेते लेते हाँफने लगे थे, लेकिन बच्चे के अंदर कोई भी सांस नहीं आ रही थी। द टेरेबल सेंस ऑफ डिफीट केम ऑन हिम। और अब लगभग ऐसा लग रहा था कि पराजय की एक भावना जो है वो एंड्रयू के ऊपर छा गई थी। मीन्स उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी हार हो गई है, वो बच्चे को नहीं बचा पाएगा। ही फेल्ट द मिडवाइफ वॉचिंग हिम, और उसने महसूस किया कि जो दाई है वो उसकी तरफ ही देखे जा रही थी। द ओल्ड लेडी कौन? जो मिसेस मॉर्गन की जो मदर थी, स्टूड विद हर बैक प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल। जो बूढ़ी औरत थी वो दीवार के साथ में अपनी पीठ लगाए हुए वहां पे खड़ी थी। शी हैड रिमेन देयर ऑल द टाइम। वो पूरे समय इसी कंडीशन में, यानी कि इसी तरह दीवार के साथ में लगी हुई खड़ी थी। नेक्स्ट, विद हर हैंड प्रेस्ड टू हर थ्रोट। और थ्रोट होता है क्या? जो गला, यानी कि अपने हाथों को अपने गले के साथ दबाए हुए। एंड्रयू रिमेंबर्ड हर लॉन्गिंग फॉर ए ग्रैंड चाइल्ड। और एंड्रयू जो है वो जानता था किस बात को, कि एंड्रयू को याद आया कि एक पोते या पोती के लिए कैसे तड़पा करती होगी, क्योंकि 20 साल हो गए थे उनकी शादी को और ये उनके पहला जो बच्चा था। इट वॉज एज ग्रेट एज डॉटर्स लॉन्गिंग फॉर दिस चाइल्ड। और उनकी जो तड़प थी, उनके जो बच्चे के लिए जो चाह थी, वो उसकी बेटी की उसके बेटे को जो अपने बच्चे के लिए जो चाह थी उससे कहीं ज़्यादा थी। यानी कि उसे नाती जो था वो बहुत ही ज़्यादा विश वो करती थी, बहुत ही ज़्यादा चाह थी नाती की। यानी कि उसे नाती जो है वो किससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है, जितना अच्छा मिसेस मॉर्गन को अपना बेटा लगता है वो कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है उसकी नानी को। नेक्स्ट, ऑल होप्स हैड डैश्ड अवे। और सभी आशाएं जो है वो धरी की धरी रह गई। ऑल एफर्ट्स हैड प्रूव्ड फ्यूटाइल बियॉन्ड रेमेडी। और सारे उसके जितने भी एफर्ट थे बेकार सिद्ध हुए, जिनका अब कोई इलाज नहीं था। नेक्स्ट, द फ्लोर वॉज नाउ ऑल वेट इन ए मैस। अब फर्श अब पूरी तरह से गीला हो चुका था और गंदा हुआ पड़ा था। द टावल ऑन विच एंड्रयू हेल्ड द चाइल्ड वॉज ऑल्सो ऑल वेट। और वह तौलिया जिसके ऊपर एंड्रयू ने बच्चे को उठाया हुआ था वह भी पूरी तरह से गीला हुआ पड़ा था। द चाइल्ड हैज बिकम सो वेट एंड स्लिपरी एट दैट एंड्रयू ऑलमोस्ट ड्रॉप्ड इट। बच्चा इतना गीला और फिसलने वाला हो गया था कि यह लगभग एंड्रयू के हाथों से अब नीचे गिरने, मतलब नीचे फिसलने लगा था। इट लुक्ड लाइक ए स्ट्रेंज वाइट फिश। और यह एकदम अजीब सी सफ़ेद मछली के जैसा लग रहा था। फॉर मर्सी सेक डॉक्टर सेड द मिडवाइफ, इट्स स्टिल बॉर्न।
Andrew did not heed her, having labored in vain for half an hour. He still made one last effort. He rubbed the child with a rough towel. He pressed and released the little chest with both his hands. Thus he tried to get breath into the limp body. उसके बाद जो नर्स है वो एकदम से, जो दाई है वो एकदम से बोलती है कि भगवान के लिए डॉक्टर, यह बच्चा जो है वो क्या है, मरा हुआ है। मीन्स भगवान के लिए आप इस तरह से एफर्ट ना करें, अब आपके प्रयास जो है वो निरर्थक है, क्योंकि बच्चा तो मरा हुआ ही पैदा हुआ है। लेकिन एंड्रयू ने उनकी बात की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और लगभग आधा घंटा आगे भी वो बेकार जो है प्रयास करने के बाद भी उसने एक और अंतिम प्रयास किया कि उसने क्या किया, बच्चे को जो है एक खुरदरे तौलिए के साथ में रगड़ा, अपने दोनों हाथों के साथ उसकी छोटी सी जो छाती है उसको दबाया और फिर इसे छोड़ा। इस तरह से उसने उस लचकले शरीर में सांस डालने का प्रयास किया। And then, as by a miracle, the little chest gave a short heave. Another and another. Andrew continued with his effort feverishly. The child had started gasping deeper and deeper. अब मानो कि एक मिरेकल होता है जादू, एक चमत्कार सा हो गया और छोटी सी छाती ने एक छोटी सी सांस ली, एक सांस ली, फिर एक और एंड्रयू ने अपने प्रयासों को जल्दी जल्दी जारी जो है रखा। बच्चे ने गहरी सांस लेना शुरू कर दी थी। द चाइल्ड हैड ए बबल ऑफ मस्क केम फ्रॉम वन टीनी नॉस्ट्रिल, और बलगम का एक छोटा सा बुलबुला छोटी सी एक नाक से बाहर आया। द लिम्स वर नो लॉन्गर बोनलेस, अभी तक जो उसकी अंग थे, जो बॉडी पार्ट थे, वो अभी तक जो बिल्कुल हड्डियों के बिना लग रहे थे, वो अब ऐसे नहीं थे। क्या? द हेड नो लॉन्गर ले बैक स्पिनलेसली, सिर अभी ढुलमुल पीछे को नहीं लटक रहा था। द स्किन वॉज स्लोली टर्निंग पिंक, जो बच्चे की जो पूरी तरह से हम कह सकते हैं कि जो स्किन है वो कैसी हो गई थी, धीरे धीरे गुलाबी होने लगी थी। नेक्स्ट, एंड देन एग्जैक्टली केम द चाइल्ड्स क्राई, और फिर उस बच्चे के रोने की एक बहुत ही सुंदर आवाज आई। नेक्स्ट, डियर फादर इन हेवन, said the nurse through her tears of joy, it's come alive। और जो नर्स है वो खुशी के आंसू गिराते हुए बोली कि हे स्वर्ग में रहने वाले ईश्वर, यह तो जीवित हो गया, इस बच्चे में जान आ गई। एंड्रयू हैंडेड द चाइल्ड टू द नर्स, ही वॉज फीलिंग वीक एंड डेज्ड। About him, the room was in a litter of all sort of things. Upon the bed, the mother still dreamed through the anesthetic. The old woman still stood against the wall, but her hands were together, her lips moved without sound. She was praying. उसके बाद एंड्रयू ने जो है वो बच्चा नर्स को पकड़ा दिया। वो खुद बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर महसूस कर रहा था। उसके चारों तरफ कमरे में सभी तरफ कचरा फैला हुआ था। चारपाई के ऊपर माँ, जो कि अभी भी बेहोशी की दवाई के प्रभाव से, उसके इफ़ेक्ट से अभी तक जो है यानी कि सोई हुई थी। बूढ़ी जो औरत है वो अभी दीवार के साथ में टेक लगा के खड़ी हुई थी, लेकिन अब उसके हाथ जुड़े हुए थे, उसके होंठ बिना कोई आवाज़ किए हिल रहे थे। इसका मतलब वो क्या कि प्रार्थना कर रही थी। Andrew pulled on his jacket and said, I will fetch my bag later, nurse। और एंड्रयू ने अपनी जैकेट पहनी और कहा कि नर्स, मैं अपना बैग बाद में मंगवा लूँगा। He went downstairs and took a long drink of water. He took his hat and coat and left the house।
वह सीढ़ियों से नीचे उतरा, पानी का एक लंबा घूंट लिया और अपना कोट और हैट पहना और घर से चल दिया। Outside he found Joe standing on the pavement with a tense, expected face. All right, Joe, said Andrew, both all right. उसके बाद जैसे ही एंड्रयू जो है वो घर से बाहर निकलते हैं, तो घर के बाहर जैसे ही वो निकलते हैं तो बाहर की तरफ उसे पटरी के पास में खड़े हुए जो कि जो मॉर्गन हैं, वो उनको वहाँ पे दिखाई देते हैं। जो को देखा और जो के चेहरे पर टेंशन और आशा की एक झलक थी। एंड्रयू ने उनकी तरफ देखते हुए कहा कि सब ठीक है जो। एंड्रयू ने कहा कि दोनों बिल्कुल ठीक है। दोनों कौन? यस, मिसेस जो मॉर्गन और साथ में उनका बच्चा। It was quite light, nearly 5 o'clock. A few miners were already in the streets. As Andrew walked with them, he kept thinking unconsciously. और अब बहुत ही ज़्यादा जो था लाइटनिंग थी, सुबह के 5 बज चुके थे। कुछ जो माइनर्स थे, माइनर्स मीन्स जो खानों में काम करने वाले थे, माइंस में काम करने वाले थे, वो पहले ही गलियों में दिखाई देने लगे थे। नेक्स्ट, as Andrew walked with them, he kept thinking unconsciously, I have done something, oh God, I have done something real at last. अब सुबह काफ़ी हो चुकी थी, एंड्रयू जा रहे थे रास्ते पे, एंड्रयू उनके साथ चल रहे थे और अचेत रूप से सोचते जा रहे थे। क्या सोचते जा रहे थे? कि I have done something, oh God, I have done something real at last. कि मैंने आज कुछ किया है, हे ईश्वर, मैंने आखिर आज कुछ असल काम कर लिया है। इस तरह से एंड्रयू जो है वो वहाँ से चले जाते हैं। इस वीडियो को देखिएगा पूरा लास्ट तक, और कल का जो वीडियो है वो सबसे मज़ेदार वीडियो होने वाला है। क्योंकि इसकी जो स्टोरी है, नेक्स्ट जो हम चैप्टर करेंगे टेल ऑफ मेलन सिटी, वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर इस बुक का है। तो कल वाला वीडियो के लिए वेट करिए, और अभी के लिए इतना ही।